So let's start the false rules of degree of comparison. Interchange of degrees of comparison. So my dear friend, first of all, the degree of adjective or adverb, the degree of adjective or adverb can be changed without changing the meaning of the sentence. So here when we use the adjective and adverb of the degree, at that time we cannot change the meaning of the sentence. So we have to change without changing the meaning of the sentence. Rule number 1. Generally, the sentence of positive degree, generally the sentence of positive degree is changed into the sentence of comparative degree. So generally when positive degree is given there, so you have to convert into comparative degree. The first rules is that, okay, when the positive degree is given there, you have to convert into comparative degree. Another thing is that if the positive degree is used affirmative sentence, so you have to convert, you have to change into comparative degree using negative. That means if the positive degree is affirmative, you make comparative degree in negative. If the positive degree is negative, then you use comparative degree as a positive. So the first rules, the sentence of positive degree is given, so you change into the comparative degree. Okay, positive degree convert into negative degree. Now if positive degree is affirmative, then you make negative sentence of comparative degree, and if the positive degree is negative, then you use comparative degree in positive. Okay, positive, negative, negative, positive. So let's see the example here. He is as good as Mukesh. Now all of you know that as is used in positive degree as affirmative sentence. So he is as good as Mukesh. Now that is the positive degree. Now we have to convert into comparative degree. So rules number 1, mind well, he is as good as Mukesh. So first of all, that is the positive degree, and we change into comparative degree. So when we change into comparative degree, the last subject we use as a first. So he is as good as Mukesh. So first we write here Mukesh is, okay, he. So मुकेश को हमने यहां पे ले लिया, और सेंटेंस देखो अफर्मेटिव है तो उसको क्या करना है, नेगेटिव करना है. ओके, ही इज एज गुड एज मुकेश. सो मुकेश इज नॉट. अभी देखो ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, तो इसको हमें क्या करना है, कंपेरेटिव करना है. तो गुड का कंपेरेटिव क्या होगा, बेटर देन और ही. So he is as good as Mukesh. तो Mukesh is not better than he. That is a sentence. तो पहला रूल जो है, ये सब्जेक्ट जो है हमें चेंज करना है. जो लास्ट सब्जेक्ट है वो फर्स्ट लेना है, और फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में लेना है. क्लियर? ये दूसरी बात, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है. तीसरी बात, ये जो पॉजिटिव डिग्री है तो उनको हमें क्या करना है, नेगेटिव करना है. ओके, तो 3 रूल्स माइंड में रखना. पहले तो वी चेंज द सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में जाएगा और लास्ट सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट में आएगा. दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव होगा. तीसरी बात, अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होगा. तो ही इज एज गुड एज मुकेश, दैट मीन्स मुकेश इज नॉट, so is not better than he. ओके, तो ये जो अफर्मेटिव था तो कंपेरेटिव में क्या हो गया,
नेगेटिव हो गया। अभी दूसरी बात देखो, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल देन as she is not so beautiful as नीलू। अब ये जब पॉजिटिव डिग्री है नेगेटिव में, तो पहले तो सी और नीलू, तो पहले हम नीलू को आगे लेंगे, उसके बाद देखो नॉट सो ब्यूटीफुल है, पॉजिटिव डिग्री में ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव का क्या होगा, हमें करना होगा, हमें नेगेटिव कंपेरेटिव में करना होगा। दूसरी बात, ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्या करना होगा, अफर्मेटिव में करना होगा। तो सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू, तो नीलू इज ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल देन सी। समझ में आ गए ये दो सेंटेंस। अगर पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव रहा तो हमें कंपेरेटिव डिग्री करते समय नेगेटिव बनाना है, और अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट, अ कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग। तो ये कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री है, और हमें इसका क्या करना है, कंपेरेटिव करना है। तो एज फास्ट एज, तो फास्ट का होगा फास्टर देन, ये तो समझ में आ गया। दूसरी बात, रन से, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हमें नेगेटिव करना होगा, तो पहले क्या है, कैट, दूसरा क्या है, डॉग, और कैट रन्स एज फास्ट एज डॉग, तो हमें बताना है अ डॉग, नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट। अभी यहाँ पे डज नॉट आया, यहाँ पे इज नॉट आया, तो ऐसा क्यों, यहाँ पे देखो ही इज दिया हुआ है, टू बी फॉर्म दिया है, तो हमने इज नॉट किया, और यहाँ पे जो है इज नॉट दिया है तो हमने इज लिया, लेकिन यहाँ पे देखो आप वर्ब है, तो वर्ब के साथ तो डू नॉट और डज नॉट ही आएगा। तो कैट रन्स एज फास्ट एज अ डॉग, सो अ डॉग डज नॉट रन फास्टर देन अ कैट। तो पॉजिटिव डिग्री में ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कंपेरेटिव बनाना है, लेकिन उसमें क्या यूज करना है, नेगेटिव। दो बात याद रखो, पॉजिटिव डिग्री है उसको हमें कंपेरेटिव बनाना है। ओके, दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री नेगेटिव बनाना है, अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपेरेटिव डिग्री को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो ये दो सेंटेंस समझ में आ गए। ये तीसरा वन, अभी लास्ट, अभी सेम देखो, अ कैट रन्स एज फास्ट एज डॉग, तो अ डॉग डज नॉट रन फास्टर देन अ कैट। अभी ये देखो, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई सो फास्ट एज द एरोप्लेन, तो यहाँ पे क्या आया, सो फास्ट एज, तो सो फास्ट एज जनरली नेगेटिव में आता है, तो इसका हमें पहले तो क्या करना है, कंपेरेटिव करना है। तो फास्ट का क्या होगा, फास्टर देन। अभी द एरोप्लेन लास्ट में है तो पहले लेंगे द एरोप्लेन, सेंटेंस नेगेटिव है तो हमें पॉजिटिव करना है, तो अब फ्लाई का होगा फ्लाइज। तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई so fast as the aeroplane, so the aeroplane flies faster than birds। तो ये कौन सा रहा, कंपेरेटिव डिग्री। समझ में आया। दूसरी बात, अभी देखो पॉजिटिव डिग्री, he reads as carefully as I do। पॉजिटिव डिग्री है तो हमें क्या करना है, उसका कंपेरेटिव करना है, तो एज केयरफुली, इसका क्या होगा, मोर केयरफुली देन। चलो ये समझ में आ गया। पहले तो एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिग्री में कन्वर्ट कर दो, केयरफुली तो मोर केयरफुली देन। अभी देखो ही रीड्स, तो हमें नेगेटिव बनाए कंपेरेटिव में, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, आई डू, तो आई डू नॉट रीड मोर ब्यूटीफुल देन ही। ओके, तो ये ही जो है वो हमें लास्ट में लेना है, और ये जो आई जो है वो हमें फर्स्ट में लेना है। ओके, सो ही रीड्स एज केयरफुली एज आई डू, तो आई डू नॉट रीड मोर केयरफुली देन ही। यू नो हर,
as well as I do. You know her as well as I do. तो सबसे पहले well है तो उसका कंपेरेटिव डिग्री क्या होगा? बेटर देन. तो चलो ये बेटर देन आ गया. अभी ये सब्जेक्ट है I do, तो अफर्मेटिव है तो इसका नेगेटिव करना पड़ेगा. I do not know her better than you. Okay, you know her as well as I do, so I do not know her better than you. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी सेंटेंस है पॉजिटिव डिग्री है तो उनका कंपेरेटिव बनाना है. पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव, पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव, पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव और पॉजिटिव डिग्री का कंपेरेटिव. दूसरी बात, पॉजिटिव डिग्री में अगर अफर्मेटिव है तो उसको नेगेटिव करना है, नेगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव करना है. पॉजिटिव है अफर्मेटिव तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव करना है. सेम थिंग, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है. यहाँ पे रूल्स लिखे हुए आप देख सकते हो कि इफ द नेगेटिव वर्ड नॉट, इफ द नेगेटिव वर्ड नॉट इज नॉट यूज्ड in the sentence of positive degree, अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का यूज नहीं हुआ हो तो नेगेटिव वर्ड नॉट विल बी यूज इन कंपेरेटिव डिग्री. एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1 आप देख सकते हो. यहाँ पे देखो, ही इज एज गुड एज मुकेश. तो इफ द नेगेटिव वर्ड नॉट इज नॉट यूज हियर, तो यहाँ पे नॉट दिया हुआ नहीं है पॉजिटिव डिग्री में, तो कंपेरेटिव डिग्री में हमें नॉट का यूज करना है. ही इज एज गुड एज मुकेश, तो मुकेश इज नॉट बेटर देन ही. ओके, इफ द नेगेटिव वर्ड नॉट इज यूज्ड, यहाँ पे यूज है, यहाँ पे इज नॉट यूज है. तो इफ द नेगेटिव वर्ड नॉट इज यूज इन द सेंटेंस ऑफ पॉजिटिव डिग्री, द नेगेटिव वर्ड नॉट विल बी नॉट यूज इन द सेंटेंस ऑफ कंपेरेटिव. समझ में आया? अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट यूज किया हुआ नहीं है तो कंपेरेटिव डिग्री में यूज करना है, और अगर नेगेटिव में नॉट का यूज किया हुआ है तो कंपेरेटिव डिग्री में हम नॉट का यूज करेंगे नहीं. और सिंपल बात, चेंज द अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस. ओके, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हुआ तो उसका नेगेटिव करना है, नेगेटिव हुआ तो अफर्मेटिव करना है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है तो उसको हमें करना है कंपेरेटिव डिग्री. ओके, अभी पॉजिटिव डिग्री अगर अफर्मेटिव हुआ तो उसका करना है हमें नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो उसको करना है हमें अफर्मेटिव. बस इतना याद रखना है. पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस का कंपेरेटिव करना है. रूल्स नंबर 2, पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव हुआ तो उसको हमें नेगेटिव करना है, और नेगेटिव हुआ तो अफर्मेटिव करना है. ओके, और एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं. ही इज एज टॉल एज राहुल. तो यहाँ पे देखो सिंपल सेंटेंस है, तो पहले राहुल को हमने ले लिया. ही इज एज टॉल एज राहुल, तो राहुल और ही है तो राहुल को ही की जगह पे ले लिया यहाँ पे. ओके, इज है तो इज नॉट हुआ, टॉल का कंपेरेटिव डिग्री हुआ, और ही को लास्ट में ले लिया. ये देखो, ये और ये. तो पहले ही इज एज टॉल एज राहुल, तो पहले राहुल को यहाँ पे ले लिया ही की जगह पे, और ही को राहुल की जगह पे ले लिया. अभी देखो, इज एज टॉल एज है तो इसका होगा इज नॉट. अभी ये रहा टॉल, तो टॉल का होगा टॉलर देन. तो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव डिग्री है तो कंपेरेटिव करिए. अभी सेम थिंग, पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको
कंपेरेटिव में क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो ही इज नॉट सो टॉल एज राहुल, तो पहले राहुल को यहाँ पे ले लीजिए, ही की जगह पे नॉट है तो रिमूव कर दीजिए, इज टॉलर देन ही। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई होप दैट आप पहला रूल्स जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप ये नोटबुक में लिख लीजिए। Vande Mataram friends, let's see more example about positive degree convert into comparative degree. So before we start the exercise, first of all look at this here. The first thing is that Bhavesh is as brave as Bhumi. He is not so big as C. So यहाँ पे देखो आप टू बी फॉर्म को दिया हुआ है इज और इज नॉट। वैसे ही यहाँ पे देखो राहुल ड्राइव्स एज फास्ट एज महेश, यानी कि वो फॉर्म दिया हुआ है। और रमेश डज नॉट रीड सो फास्ट एज आई। सो यहाँ पे जो है वर्ब का यूज किया हुआ है और यहाँ पे इज का यूज किया हुआ है। अगर एमिजार टू बी फॉर्म आता है तो हमें एमिजार ही यूज करना है, और अगर एमिजार फॉर्म नहीं आता है तो हमें डू नॉट और डज नॉट का यूज करना है। तो पहले आप माइंड में क्लियर कर लो कि ये जो सेंटेंस है भावेश इज एज ब्रेव एज भूमि, तो ये कौन सा सेंटेंस है। तो हमें पता है कि ये भाई कौन सा है, कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है। तो उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव डिग्री में यूज करना है। तो सबसे पहले ये जो भूमि है, ओके, ये जो भूमि है उसको हम पहले ले लेंगे, यानी कि यहां पे लिखेंगे भूमि। भूमि इज, इतना क्लियर। यहां ऐसे आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भावेश जो है वो भूमि की जगह पर आएगा और भूमि जो है वो भावेश की जगह पे आएगा। अभी ये देख लो कि भूमि पहले लिया, इज लिया, अभी ये कौन सी डिग्री है, एज ब्रेव एज, पॉजिटिव डिग्री है। तो हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, नेगेटिव में, कंपेरेटिव डिग्री में करना है। लेकिन सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, तो पहले नेगेटिव कर लेते हैं। भूमि इज नॉट के साथ क्या आएगा, भूमि इज नॉट। अभी देखो एज ब्रेव एज, तो ब्रेव का कंपेरेटिव क्या होगा, भूमि इज नॉट ब्रेवर देन, भूमि इज नॉट ब्रेवर देन कौन है, भावेश। तो भावेश को हम यहां पे ले लेंगे, भावेश। तो ये हुआ कंपेरेटिव डिग्री। समझ में आया, श्योर। अभी देखो दूसरा सेंटेंस, ही इज नॉट सो बिग एज सी। तो पहले तो हमें जो है वो सी को आगे लेना होगा और ही जो है वो सी की जगह पर आएगा। पहले ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पहले तो देख लो सी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सी। अभी देखो इज नॉट यूज हुआ है तो हमें नेगेटिव नहीं करना है, ये रिमूव करना है। ओके, सी इज सो बिग एज, पॉजिटिव डिग्री है तो बिग का क्या होगा, बिगर देन, हो गया बिगर देन। अभी क्या रहा, ही, तो यहाँ पे लिख दो ही, तो हो गया ही इज बिगर देन, सी इज बिगर देन ही। समझ में आ गया। ये पॉजिटिव डिग्री है तो उसको हमने कर दिया कंपेरेटिव डिग्री। अभी वर्ब में देखते हैं, राहुल ड्राइव्स एज फास्ट एज महेश, पॉजिटिव डिग्री है, ये कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री है। तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, महेश को लेंगे। ओके, तो राहुल की जगह पे लिखेंगे महेश। ओके, अभी ड्राइव्स है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, महेश के साथ डज नॉट ड्राइव। समझ में आ गया, ड्राइव का क्या होगा, डज नॉट
ड्राइव। अभी जो एडजेक्टिव है उसको कंपेरेटिव में करना है तो क्या होगा, फास्टर देन, कौन बाकी अभी, राहुल, तो राहुल को यहाँ पे ले लो, राहुल। ये हुआ कंपेरेटिव डिग्री, समझ में आया। महेश डज नॉट ड्राइव फास्टर देन राहुल, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ, हाँ सेंटेंस चेंज हुआ लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अभी सेम थिंग, रमेश डज नॉट रीड सो फास्ट एज, अभी सो फास्ट एज पॉजिटिव डिग्री है तो पहले तो समझ लो इसको कंपेरेटिव करना है। दूसरी बात यहाँ पे क्या यूज हुआ है, डज नॉट यूज हुआ है, तो हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है। अगर नहीं है तो यूज करना है तो रिमूव करना है। तो पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट आई, ओके, पहले आई हो गया। अभी वर्ब क्या है यहाँ पे, रीड है, तो आई रीड। अभी यहाँ पे आई रीड क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डज नॉट था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव कर दिया। अभी इसका कंपेरेटिव करना है तो आई रीड फास्टर देन रमेश, रमेश। तो ये हुआ कंपेरेटिव डिग्री। समझ में आया डियर फ्रेंड्स? फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री ऑलरेडी बनाया हुआ है सेंटेंस, ओके। तो देख लो, अफर्मेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव क्या आता है, एज एस, अगर नेगेटिव रहा था नॉट, सो एज। हमें पता ही है ई आर मोर देन, और नेगेटिव हो तो नॉट ई आर मोर देन। तो पहले सेंटेंस देखो, भावना इज एज डल एज रीटा, भावना इज एज डल एज रीटा। तो पहले कौन है, लास्ट में कौन है, रीटा है, तो हमने पहले ले लिया रीटा, ओके। अभी देखो इज है तो उसका नेगेटिव करना है इज नॉट, तो रीटा इज नॉट, इतना क्लियर। अभी ये देखो एज डल एज है, तो एज डल एज को रिमूव करके हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो डल का क्या होगा, डलर देन, तो रीटा इज नॉट डलर देन भावना। हो गया, सब्जेक्ट चेंज करो, डिग्री चेंज करो, सिंपल। अभी दूसरा सेंटेंस देखते हैं, विनय इज नॉट सो टॉल एज आई। पहले तो देख लो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका हमें क्या करना है, अफर्मेटिव करना है, ओके। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव डिग्री है तो हमें क्या करना है, कंपेरेटिव। पहले सब लास्ट में कौन है, आई है, तो पहले हम ले लेंगे आई, उसके बाद इज नॉट है तो आई के साथ क्या आएगा, एम। डल का कंपेरेटिव क्या होगा, डलर देन विनय, तो विनय इज नॉट सो टॉल एज आई, तो आई एम टॉलर देन विनय, ओके। नेक्स्ट वन, दे वर्क एज मच एज आई डू। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे देखो इज था तो इज नॉट हुआ, इज नॉट है तो ओनली टू बी फॉर्म आया, एम मतलब रिमूव कर दिया, और यहाँ पे ये वर्ब यूज हुआ है, ओके। दे वर्क एज मच एज आई डू, तो पहले तो हम किसको लेते हैं, लास्ट सब्जेक्ट को लेते हैं आई डू, तो आई डू के साथ अभी देखो सेंटेंस अफर्मेटिव है तो डू का साथ में नेगेटिव क्या आएगा, नॉट। सो आई डू नॉट, मच का कंपेरेटिव क्या आएगा, आई डू नॉट के बाद वर्क, आई डू नॉट वर्क मोर देन दे, दे वर्क एज मच एज आई डू, तो आई डू नॉट वर्क मोर देन दे, क्लियर। नेक्स्ट, दिस बुक इज एज यूजफुल एज दैट, तो पहले लेंगे दैट बुक इज नॉट more useful than this. Last one, the sword is not so mighty as the pen, तो पहले तो हम किसको लेंगे, पेन को, तो ये रहा पेन। यहाँ पे देखो इज नॉट है तो पहले लेंगे हम इज। अभी एज सो माइटी एज, तो इसका कंपेरेटिव करना होगा, माइटी का होगा माइटियर देन, तो ये रहा माइटियर देन। लास्ट में क्या रहा, स्वॉर्ड, पहले था तो उसको लास्ट में ले लिया, ओके। सो द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो ये पहला रूल्स पॉजिटिव इनटू कंपेरेटिव का खत्म हुआ। आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो लिख लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम
दूसरा रूल्स। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ बेसिक है, अभी तो सिंगुलर प्लूरल बाकी है, तो पहले नोटबुक में लिख लो। ओके, थैंक यू।